भारत स्टार्टअप रिवॉल्यूशन एसएस के भारत के द्वारा हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव बाय डिस्कशन। बातों से कभी बदलाव नहीं आता, बदलाव के लिए काम करना पड़ता है। भगवत गीता में यही कहते हैं कि कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। कर्म करना ही हमारा काम है और जो कर्म करेगा वही कोई बदलाव ला सकेगा। और हम लोग ये बदलाव लाना चाहते हैं एक विजन मिशन के साथ, और वो हमारा विजन मिशन है टू ब्रिंग बैक एंशियंट ग्लोरी ऑफ भारत अगेन। हमारे भारत का पुराना गौरव, वैश्विक गौरव ये वापस लाना और भारत को $5 ट्रिलियन ग्रीन इकोनॉमी की तरफ आगे ले जाना। और इसके लिए हमने एक जबरदस्त मॉडल बनाया है मित्रों। ये मॉडल है हमारा स्टार्टअप मॉडल, स्टार्टअप रिवोल्यूशन, जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगा। और आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूंगा। वी टू आर द फाउंडर डायरेक्टर्स ऑफ एसएस के भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड। ये एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चुकी है। एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर, एडवोकेट मुंबई हाईकोर्ट और हमारे ग्रुप के चेयरपर्सन। उसी के साथ साथ सर ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया के लिए अपॉइंटेड है भारत सरकार द्वारा। और मैं कार्तिक रावल, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एसएस के भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज। और हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी 2020 में। वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई और हम आगे बढ़ते गए। मित्रों, हमने जो काम किया उसमें उपाध्याय सर का अपॉइंटमेंट ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया भारत सरकार द्वारा 1 साल पहले हुआ, जिसका प्रोग्राम मुंबई के 7 स्टार होटल सहारा स्टार में हुआ था। ये उसका छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। Very good evening to all the people present here for this International Day of Education Conference, strengthening bilateral investment partnership. And I want to welcome the excellencies in Mumbai, and I want to congratulate our Trade Commissioner of Eurasia, so Mr. Upadhyay. Thank you so much, sir, and we look forward to your continued engagement and enormous possibility to expand such trade and engagements between Maharashtra state, your offices in Mumbai, and the embassies in Delhi for delegations, for any trade inquiries, for any kind of support that you might be needed from the Ministry of Commerce in the Government of India and the External Affairs, and of course the embassies that are present. And the ambassadors are here. It is a great sign and a testimony to the fact that they are inviting Indian businesses to these countries for more and more business development and prospects. And finally, I want to thank all of you for being here this evening. And I would like to welcome the Trade Commissioner to receive your certificate of appointment in the hands of our chief guest today. And please, you can come and, can we have the... All right, guys, give a big round of applause. Dr. Asif Iqbal, along with the entire dignitaries, presenting Advocate Shyam Shankar Upadhyay, the award and the certificate of Trade Commissioner of the two bilateral countries. मला बहुत नामांकित व्यक्ति, गुजरात से पॉलिटिकली बड़े व्यक्ति के कनेक्शन वाले वो भी थे, और इन सब के बीच में many congratulations to Honorable Mr. Shyam Shankar Upadhyay for being Trade Commissioner Eurasia, Maharashtra. On this auspicious occasion, it's time now to launch our product in front of all the dignitaries and all the guests present here. So let us call upon Mr. Karthik Rawal on stage, along with them all the dignitaries and Dr. Chetan to please give us a wonderful view of our new product which are launching today in front of everyone out here. So everybody join your hands together for unveiling a new product from the Go Life Sciences by opening the curtain raiser on stage. Come on guys, I would request everybody give a big round of applause. As this is an auspicious moment present here, we are unveiling a new product from Go Life Sciences. उसी दिन हमने गो लाइफ साइंसेज द्वारा निर्मित 2 ऑर्गेनिक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर, जो कि दर्शनी अदानी जी की कंपनी है, वो लॉन्च किए, उसको पैन इंडिया ले गए और अभी उसको हम डेवलप कर रहे हैं। मित्रों, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑफिशियल मैगजीन है
और इस मैगजीन में आप देख सकते हो श्याम शंकर उपाध्याय सर के बारे में पूरा आर्टिकल छप के आया है। हमारे जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट हुआ उसके फोटोज उसके बारे में है। यहाँ पे आप राइट में नीचे देख सकते हो कंट्रीज, 93 कंट्री। और अगर मैं बैक करूँ तो आप देख सकते हो श्याम शंकर उपाध्याय के नाम के नीचे लिखा है ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया, ये यहाँ पे लिखा गया है। और 93 कंट्री के ट्रेड कमिश्नर है सर। तो हमारे बिजनेस को, हमारे प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में ले जाना, ये हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। हमारे मुखिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पिलर, जिनके कारण ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है इतनी मजबूती से, वो खुद हमारे लिए उपलब्ध है, जो हमको हमारे प्रोडक्ट को, हमारे बिजनेस को पूरी इंडिया में ले जा सकते हैं। दोस्तों, हमारा अपना एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। हम हमारे कामों के लिए दूसरे पे निर्भरता कम रखते हैं, और इसलिए हमने एक सिस्टम, इकोसिस्टम बनाई है। एसएस के भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड, ये हमारी कोर कंपनी है, मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है। इसके नीचे एसएस के भारत फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, फैब, एसएस के भारत फैब जिसे हम कहते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट डिवीजन है। एसएस के भारत अनंत इनोवेशन हमारा आईटी एंड सोशल मीडिया डिवीजन है। एसएस के भारत बीबीआई, बिजनेस बिल्डिंग इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। और एसएस के भारत निर्माण, जिसके अंदर हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी डेवलपमेंट्स का काम करते हैं। इसी के साथ साथ हमारी अपनी पहली काशी विश्वनाथ क्लीन फ्यूल एंड नेचर गेट प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी पहली स्टार्टअप कंपनी जो कि वाराणसी में एस्टैब्लिश हो रही है। मित्रों, हमने जिन कंपनियों के लिए काम किया उनका नेटवर्क बहुत रैपिडली बढ़ा के दिया। मतलब लोग सोचते उसके ज्यादा तेजी से हमने काम किया। सिर्फ 4 साल के समय में 18 राज्य, 18 स्टेट, 250 जिले, 800 तहसील, 4,500 ग्राम पंचायत, 10,000 गांव, 25 लाख किसान, 150 करोड़ का रिवेन्यू जनरेशन और 30 करोड़ एसएस के भारत को, इतना बड़ा बिजनेस हमने करके दिखाया मित्रों। इसके साथ साथ वेरियस गवर्नमेंट के साथ एमओयू, ये हिमाचल गवर्नमेंट के साथ हुआ था। राइट के फोटो में आप देख सकते हो मैं हूं, और मेरे सामने बराबर स्टेज पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उसके पेपर आर्टिकल्स है। उसके बाद राजस्थान के एमओयू एलओआई, गुजरात के एमओयू, गुजरात सरकार के मिनिस्टर्स के साथ, ये कोरोना टाइम में हुए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के हस्ते हमारे एक एंटरप्रेनर, किसान के बेटे, युवा, ऐसे मनोज पाटीदार को प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश का अवार्ड, पेपर में उनका आर्टिकल, और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। शायद वो वीडियो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इन्वेस्ट यूपी के ट्विटर हैंडल पे अगर आप आज भी चले जाओ तो मेरा इंटरव्यू अवेलेबल है। और इसके अलावा जितने चैनलों पे यूपी गवर्नमेंट ने उनका इन्वेस्ट यूपी का टेलीकास्ट किया था, वो हर चैनल पे मेरा इंटरव्यू दिखाया गया था मित्रों। हमने अलग अलग जगह पे बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट जो कंपनी ने लगाए उनके साथ काम किया, प्रोजेक्ट सेट हुए, प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हुए, और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम हमारी अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वी हैव कम अप विद ए यूनिक आइडिया। एसएस के भारत काशी विश्वनाथ एग्रोबेस मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क, इसके अंदर बायोफ्यूल एंड एग्रोबेस इंडस्ट्रियों की शुरुआत हमने की, और इसका काम वाराणसी में शुरू हुआ, जिसका जो भूमि पूजन प्रोग्राम हुआ था वो सत्येंद्र दास जी महाराज, जो कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, जो अभी कुंभ मेला समाप्त होते होते जिनका स्वर्गवास हुआ, ऐसे सत्येंद्र दास जी महाराज के हाथों हुआ। और सही न कहीं उनके आशीर्वाद हमारे साथ रहे होंगे, तभी ही जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ उसी दिन हमारे प्रोजेक्ट के बायोकोल फर्टिलाइजर पैलेट के मशीन से, सॉरी, हमारे कैटल फीड के जो मशीन है उससे हमने पहला प्रोडक्शन निकाला था। तो ये उनके आशीर्वाद थे, उनके प्यार, उनका जो हमारे ऊपर जो उनकी भावना रही होगी, उसके कारण ही ये हुआ है मित्रों। और उनके साथ साथ हमारे प्रिय ऐसे मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु समान, मेरे मित्र समान भी कहूँ तो चलेगा, है तो संत मगर मेरे साथ इस तरह से आत्मीयता से जुड़े हुए हैं, ऐसे धर्मदास जी महाराज जो अयोध्या से है, और उनका हमें सहयोग रहा। उसके बाद वहाँ पे प्रोजेक्ट जब रेडी हुआ, जब उसका भूमि वास्तु पूजन हुआ मशीन एस्टेब्लिशमेंट के पहले, तब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज, आप सब जानते हो कि योगी जी हो, मोदी जी हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, कहीं के भी मुख्यमंत्री हो, बड़े बड़े मंत्री, उन सबके साथ इनका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, और इन सबका भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और यहाँ पे मेनली बायोकोल यूनिट, डेयरी एंड डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 4 फेज में हम काम करने जा रहे हैं। और इसका जो पर्पस है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब गांवों के, ग्रामीण भारत में जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गांवों में करना। देखो, भारत का विकास तब होगा जब हमारे गांवों में मैक्सिमम रोजगार होगा।
हमारे गांवों के युवाओं को शहरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा जॉब के लिए। अब तो शहर भी नहीं, विदेश में जाने लगे लोग। तो हमको ऐसा एक इकोसिस्टम का निर्माण करना है कि गांवों में इंडस्ट्री लगे, गांवों में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, वहां पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार का निर्माण हो, वहां के जो भी रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूटिलाइज हो, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो, ग्लोबल वार्मिंग कर्सन को हम एड्रेस करें, और साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट के भारत सरकार के टारगेट्स को अचीव करने में भी भारत सरकार के साथ योगदान दे। मित्रों, हमने एक यूनिक सिस्टम की है, और हमारा जो रॉ मटेरियल है टोटल प्रोडक्शन वो है नेपियर ग्रास या बायोमास। ये हमारी मास्टरी है, इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। और ये नेपियर ग्रास की अगर खासियत कहूँ तो ये एक बार लगाने पे 8 साल चलता है, हर 2 से 3 महीने में कटिंग मिलता है, पर एकड़ पर ईयर 300 से 700 टन प्रोडक्शन होता है, और दिस विल बी अ सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अस। ये हमारे लिए एक सस्टेनेबल सप्लाई होगा। एडिशनल में जो लोकल किसानों का बायोमास होता है, जो पराली होती है, जो किसान जला देते हैं, जिसके कारण हमारी धरती माता को पीड़ा होती है, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, पर्यावरण खराब होता है, उसको तो हम खरीदेंगे ही, मगर शायद वो सफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए हम उसके साथ साथ नेपियर ग्रास को भी कल्टीवेट कर रहे हैं और उसको उगाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ उगाने का काम नहीं कर रहे, उसको काटने के लिए यूनिक मशीन। इसकी मैं 2 दिन पहले गया था इनकी फैक्ट्री में। आज ही मेरा हमारे कंसर्न जो मित्र है उनका फोन आया और इसका सारा डील फाइनल हुआ, और नेपियर ग्रास काटने की यूनिक मशीन जो उन्होंने डेवलप की है वो हमने ऑर्डर करने वाले हैं, और वो पहली मशीन वहां पे आने वाली है। हालांकि इन्होंने ऑलरेडी मशीन बनाई है और कई जगहों पे इन्होंने दी है, और ये एक सचमुच में अद्भुत प्रोडक्ट इन्होंने डेवलप किया है। और सचमुच इनके जो डेवलपर है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा और इतना बढ़िया मशीन डेवलप किया। मित्रों, नेपियर ग्रास में और एक चैलेंज होती है। नेपियर ग्रास में 75% मॉइस्चर यानी पानी होता है। रोज 100 टन नेपियर ग्रास हम काटेंगे तो 25 टन हमको ड्राई बायोमास मिलेगा, मगर उसको ड्राई करना इतना आसान नहीं है। उसको 2-2 3-3 बार अगर हम हीटिंग करके ड्रायर में से घुमाएंगे तभी भी उसका मॉइस्चर नीचे नहीं आता। तो वर्ल्ड की पहली नेपियर ग्रास प्रोसेसिंग सिस्टम, यस, वर्ल्ड की पहली नेपियर ग्रास प्रोसेसिंग सिस्टम, ये एसएस के भारत काशी विश्वनाथ मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क में वाराणसी में एस्टैब्लिश हो रही है, लग रही है। और भगवान ने चाहा तो इसी मई महीने में हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे मित्रों, और ये होने वाला है एक बहुत बड़ा चमत्कार। इसके बाद एक पूरी की पूरी नई व्यवस्था किसानों के लिए नेपियर ग्रास की होगी। नेपियर ग्रास किसान उगाएंगे गन्ने की तरह, वो लोग खरीदेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करके रॉ मटेरियल के रूप में उसको पूरे देश में और दुनिया में सप्लाई करेंगे। ये यूनिक मशीन पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को हम गिफ्ट करने जा रहे हैं मित्रों। ये मशीन आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपको ये अच्छी बात लगी हो तो डेफिनेटली थम्स अप आना चाहिए मित्रों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मशीन के द्वारा हमारे किसानों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी क्रांति आए। तो मित्रों, यस, थम्स अप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। तो लोगों को ये अच्छा लगा है, यस, हमें भी अच्छा लगा है, क्योंकि इससे हम डेली मतलब पर आवर 10 टन नेपियर को प्रोसेस कर सकेंगे। अगर 10 घंटा चलाते हैं तो 100 टन, 20 घंटा चलाते हैं तो 200 टन नेपियर को प्रोसेस करेंगे, यानी 50 टन हमको रॉ मटेरियल डेली उपलब्ध होगा कम से कम। इससे ज्यादा कैपेसिटी पे काम करेगा। और ये यूनिक मशीन जो नीलासन इंजीनियरिंग सतीश सर ने जो बनाई है, इसके लिए मैं सतीश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। सतीश सर के साथ कोलैबोरेशन में हमारा एसएस के भारत निर्माण है, और इस मशीन को बेचने का राइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड एसएस के भारत के पास है। और फॉर्चुनेटली मशीन बनने के पहले हमारे पास लोगों की इंक्वायरी है, 10 से 15 मशीन की डिमांड है, बट हमने उनको कहा है लेट अस डू द फर्स्ट 100% परफेक्ट, और फिर हम आपका ऑर्डर लेंगे। तो ये हमारे पास एक और अचीवमेंट है मित्रों। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर प्ले होता है तो। नमस्ते मित्रों, एसएस के भारत काशी विश्वनाथ एग्रोबेस एसएमए इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क, इसमें जो ये नीलासन का मशीन जो नेपियर प्रोसेसिंग सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं वर्ल्ड की पहली, उसके सेकेंड पार्ट ऑफ मशीनरीज आ चुकी है। ये उसके आप देख सकते हो 3 से 3 पार्ट से उसके कटर देखिए मित्रों, इंडस्ट्रियल कटर पे ये आप देख सकते हो, यूनिक हैवी वहाँ पे रखा है ऊपर। ये दरअसल बहुत बड़ा ये 32 मीटर लंबी सिस्टम है लंबी कटर। इसके अलावा आपको बिना हीटिंग, बिना इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग के या और कोई हीटिंग के पूरा मॉइस्चर निकाल कर 3 mm को ऑफर करना।
और ये 2 महीने पहले का वीडियो है, तो ये बहुत हेवी पार्ट से बहुत इसमें ready हो। हेवी मशीनरी से तो ये एक मशीन यूनिक हो रहा है मित्रों। इसके बाद हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है इस नेपियर ग्रास और खेती के वेस्ट बायोमास, चाहे सरसों हंस हो, मस्टर्ड हंस हो, लकड़े का बुरादा हो, चावल की भूसी हो, या फिर नेपियर ग्रास का पाउडर हो, इसमें से बायोकोल ब्रिकेट। ये बायोकोल ब्रिकेट जो हमारे फैक्ट्रियों में बॉयलर्स होते हैं, जिसको जलाने के लिए कोयले का यूज होता है, उसका रिप्लेसमेंट में ये यूज होते हैं। ये मशीन की पर आवर कैपेसिटी है 1.5 टन का प्रोडक्शन। अगर हम 8 घंटे की शिफ्ट में चलाए तो 12 टन, 2 शिफ्ट में चलाए तो 24 टन का डेली प्रोडक्शन। और सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा बायोकोल पैलेट। बायोकोल पैलेट ये यूनिक प्रोडक्ट है। भारत सरकार के द्वारा समर्थ मिशन के अंतर्गत एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट ऑलरेडी टेंडर्स निकाल रहे हैं, और 10% बायोकोल जो हजारों लाखों टनों में डिमांड है। अभी यूपी का टेंडर आया था, नोएडा से आया था, हरियाणा से आया था, अभी गुजरात का टेंडर आ रहा है। हर जगह से टेंडर निकल रहे हैं और ये बायोकोल पैलेट थर्मल पावर प्लांट खरीद रहे हैं। मगर थर्मल पावर प्लांट के अलावा जो फैक्ट्रियां है जहाँ पे छोटे बॉयलर है, वहां पे भी ये यूज होता है, और इसकी भी बहुत बड़ी डिमांड है। सत्यजीत इंजीनियरिंग का ये हमारा बायोकोल पैलेट मशीन है, राधे इंजीनियरिंग का हमारा बायोकोल ब्रिकेट मशीन है। और इस पैलेट मशीन का 2 टन पर आवर का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। मतलब 8 घंटे की एक शिफ्ट में 16 टन, 2 टन में 32 टन, 32 और 24 अराउंड 56 टन होता है। बट मैं अगर 50 टन का दिन का प्रोडक्शन पकड़ू और सिर्फ 2,000 रुपया ही नेट प्रॉफिट पर टन पकड़ू, तो भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट सिर्फ ये 2 मशीन यही प्रोडक्ट से एसएस के भारत की इस पहली फैक्ट्री को देके जाएंगे। ये अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्शन है मित्रों। थर्ड प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं, हम लोग अभी ऑर्डर नहीं दिए, बट अभी दूंगा क्योंकि मुझे कुछ चीजें सेट करनी थी। ये सेमी टोरिफाइड बायोकोल है, जिसमें अंदर से होल होता है, ऊपर से काला होता है और अंदर से काला होता है। और ये जो हमारे तंदूर तंदूर में देखो, अभी आपने देखा होगा कि तंदूर के कोयले के ऊपर बैंड आ रहा है, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, हर जगह पे। तो उसका रिप्लेसमेंट ये पूरा का पूरा बायोकोल सेमी टोरिफाइड जा सकता है। और ये मशीन सनी इंजीनियरिंग आई थिंक लुधियाना से है, और उनका नाम भी कार्तिकी है। मैं उनको मिला हूँ और अभी मैं ये मशीन भी ऑर्डर देने वाला हूँ। ये मशीन भी हमारे यहाँ पे आएगा। टोरिफाइड मशीन हम इसको स्टडी कर रहे थे और लगभग अभी मेरा स्टडी फाइनल हुआ है। और ये हमारे जो नासिक में फेबोन इंजीनियरिंग है, जिनका हमने और एक मशीन लिया है जो मैं आगे बताऊंगा, उनका नाम भी सतीश है, और उनके द्वारा डेवलप किया गया हुआ टोरिफाइड यूनिट भी हम 2 टन पर आवर का लेने वाले हैं। टोरिफाइड कोल मतलब काला कोयला, मगर ये जमीन में से निकला हुआ कोयला नहीं, ये बायोमास से बनाया हुआ कोयला। और इसकी जीसी भी अच्छी होती है, ऐश ना के बराबर होती है, मॉइस्चर ना के बराबर होता है। और ये काला कोयला जबरदस्त बड़ी मार्केट है मित्रों, इंडिया में तो है ही है, दुनिया में भी ये मार्केट है। ये भी हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ बायोचार, ब्लैक गोल्ड, चारकोल, ये हम लोग लाने जा रहे हैं। एक मशीन जो संजीवनी एग्रो का हम मोस्ट ऑफली हमने फाइनल किया है, वही हम लेने वाले हैं। 2 टन पर आवर कैपेसिटी, 2 टन पर डे होता है ये। और ये बायोचार फार्मिंग के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत जगह पे इसका उपयोग है। ये पूरी की पूरी इकोसिस्टम हम बना रहे हैं। इसके साथ साथ कैटल फीड पैलेट फ्रॉम नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास से हम गायों का पशु खाद, पशु आहार, खाद्य, मुझे खाद बोलता हूँ तो बहुत लोग बहुत बार कहते हैं खाद नहीं, खाद्य, तो पशु खाद्य ये बनने जा रहा है। और ये पैलेट, इसमें 18 से 20% क्रूड प्रोटीन, फाइबर, और इसमें हम कुछ यूनिक हर्ब मिला रहे, जिसके कारण ये जबरदस्त न्यूट्रिशन देगा, केमिकल फ्री होगा, और हमारी गायों की सेहत बढ़ाएगा, दूध बढ़ाएगा, और हर तरह से किसानों के लिए लाभकारी होगा। और सबसे बड़ी बात, बाकी के कैटल फीड से चीपर होगा। ये सबसे बड़ी बात है मित्रों। इस मशीन की अभी जो हमने लगाया, इसकी आधा टन पर आवर की कैपेसिटी है, बट हमारे पास वहां पे और स्पेस है, हम चाहे तो 2 टन पर आवर का और एक मशीन वहां पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मित्रों ये पूरी इकोसिस्टम है। इसके साथ साथ इन्हीं बायोमास से, इसी नेपियर घास के पाउडर से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी बनता है कार्तिक जी, तो चलो दिखा देते हैं क्या बनता है वो। तो ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ मित्रों आपके लिए। नेपियर से बने हुए कप में हम चाय पी रहे हैं। नेपियर ग्रास से बने हुए चाय के कप में मैं चाय पी रहा हूँ मित्रों। ये उसका मशीन है जो एक कोयंबटूर में, मैं उसका नाम भूल गया, उन्होंने डेवलप किया है। ये भी हम वहाँ पे ला रहे हैं। ये देखिए चाय के कप बनेंगे, दोने बनेगी, चम्मच बनेगी, प्लेट बनेगी। सबसे मजे की बात क्या है पता है, इसको अगर मैं जमीन पे फेंक दूं तो फर्टिलाइजर बन जाएगा, पानी में फेंक दूं और गाय को दे दो तो गाय का खाना बन जाएगा। नो वेस्टेज, जीरो वेस्ट प्रोडक्ट, 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और ये सारे प्रोडक्ट एक ही बायोमास से, वह नेपियर ग्रास।
ये सबसे बड़ी यूनिक, और ये पूरा का पूरा जो फेज है हमारा मित्रों, पूरा दो शिफ्ट जब ऑपरेशनल होगा तो इसका रेवेन्यू 30 से 50 लाख रुपया, यानी गलत मत दिन समझना। का कम से कम 8 से 10 लाख रुपया तक जा सकता है टर्नओवर, और कम से कम 2 से 3 लाख रुपया इसका डेली प्रॉफिट हो सकता है। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, और आने वाले 2 से ढाई महीने में नेपियर ग्रास के साथ ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा 100% वायबल होगा। इसको देखने के लिए बड़े बड़े लोग आने वाले हैं मित्रों, इसको फाइनेंस करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है, और ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हम हमारे स्टार्टअप्स के द्वारा भारत देश के अलग अलग तहसीलों में लगाने वाले हैं मित्रों। इसके बाद ये है भविष्य का कुकिंग। देखो एलपीजी दिन भर दिन महंगा हो रहे जा रहा है। अगर हमारे देश, क्योंकि एलपीजी के लिए दूसरों पे निर्भर करता है, अगर समझो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें वॉर लाइक सिचुएशन बढ़ती है इंटरनेशनल या इंडिया कहीं भी, तो हमारा एलपीजी, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो जाएगा। तो भविष्य का कुकिंग, कमर्शियल कुकिंग अगर इसकी बात करूं तो क्या है पता है? बायोकोल बेस्ड स्टोव। ये देखिए, इसके वीडियो में आपको दिखाता हूं मित्रों। ये देखिए इस तरह से ये चलते हैं, ये आप देख रहे हो चाय बन रही है। बोला मामा चाह बहुत जल्दी था। देखिए हमने बहुत सारी R&D की है, हमारे उत्सव भाई ने R&D की है, हमने की है, हमारी माता जी ने की है। हमने इसमें बहुत काम किया, और इस महीने में ही हम एक बायो को इस तरह से 4 मॉडल देने वाले, 100% प्रैक्टिकल एंड वायबल होंगे मित्रों। तो ये बायो स्टोव भविष्य का कुकिंग है, इसका इकोनॉमिक्स में आपको बताऊंगा मित्रों, क्योंकि कोई भी चीज फायदे के बगैर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कमर्शियल कुकिंग, चाहे होटल हो, रेडी रेकड़ी वाले हो, समोसा वाले हो, नमकीन वाले हो, इनको एलपीजी कमर्शियल कुकिंग के लिए कम से कम 100 रुपये किलो पे मिलता है, और उसको मुझे रिप्लेस करना है बायोकोल से तो 3 किलो बायोकोल इनफ होता है। अगर मैं 18 रुपए का रेट भी बताऊं पैलेट का, तो 54 रुपया, मतलब 40 से 50% का सेविंग उनके डेली के फ्यूल कंजम्पशन में होता है। अगर किसी को एक सिलेंडर रोज का लग रहा है तो उसका 800 से 1000 रुपया बचेगा, महीने का 24 से 30 हजार रुपया बचेगा। तो सोचो जिसको 10 सिलेंडर लग रहा है उसका कितना पैसा बचेगा। प्लस ये पैसा मेरे किसान भाइयों के घर पे जाएगा, क्योंकि वो बायोमास का है जो बनने वाला है, और उसके अलावा ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा, उसके अलावा हमारा इंपोर्ट बचेगा, हमारे पैसे बाहर जा रहे हैं वो बचेंगे, हमारे देश की निर्भरता कम होगी, और ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा। तो ये चमत्कार भी हमारी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो आप सोचिए, नेपियर बेस्ड, बायोमास बेस्ड पूरी की पूरी इकोनॉमी तैयार हो रही है मित्रों। इसके बाद है देसी गाय का दूध और दूध के प्रोडक्ट, ये हमारा सेकंड फेज डेवलपमेंट है। गाय के दूध से दूध, दही, पनीर, मक्खन, छाछ, लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क और आइसक्रीम। देसी गाय के दूध की आइसक्रीम जरा ढूंढ के दिखाओ, हम देंगे आपको, बहुत जल्द देंगे, और वाराणसी से देंगे। दूसरा, गोबर से पेंट, प्राकृतिक पेंट, श्री नितिन गडकरी जी हमारे सम्माननीय मंत्री जी है, और उनका काम तो सब जानते हो आप, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। खादी ग्रामोद्योग जयपुर से उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वो पेंट भी हम हर जगह पे लॉन्च करना चाहते हैं। 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है मित्रों। अगर कोयले की 100 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ना, तो पेंट की 1 लाख करोड़ की भारत में इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मित्रों। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर और धूप, ये सारी चीजें हम बनाने जा रहे हैं। इसके बाद एग्रोवेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें मसाले, एडिबल ऑयल और जो भी फूड प्रोसेसिंग हो सकता है वो सब हम करेंगे। और उसके बाद सीबीजी प्रोडक्शन फ्रॉम नेपियर ग्रास पाउडर एंड गाय का गोबर। को रिलेटेड हमारे हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से कड़ी जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। सारे की लाइन एक ही है, बायोमास और ग्रामीण भारत, खेती, इसी से जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट है। और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग मित्रों, ऑर्गेनिक की फार्मिंग की क्या जरूरत है ना, उसका एक वीडियो देखना जरूरी है, इसको समझते हैं हम। आप सोचिए हम क्या खा रहे क्या पी रहे, जाने अनजाने में पैसे देके हम जहर खा रहे, जहर पी रहे, जहर में जी रहे। आमतौर पे हमको पता नहीं चलता, मगर किसी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाओ तब पता चलता है कि क्या परिस्थिति है। इसको बदलना होगा, और इसको बदलना भी हमारे इस स्टार्टअप रिवोल्यूशन का एक हिस्सा है मित्रों। कम से कम इस कार्य के लिए आप जुड़ ना सको, पैसे ना दे सको, कोई बात नहीं, आशीर्वाद जरूर देना। हमको एक करके दिखाना है देश के लिए। हाँ, और लोग कहते हैं ना कि अरे ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, मुझे एक ही बात कहनी है, पूरा का पूरा सिक्किम स्टेट 100% ऑर्गेनिक है। जब एक पूरा स्टेट अगर ऑर्गेनिक हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। और इसके लिए हमने यूनिक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है। हमारा अपना ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो है ही। आने वाले समय में पेस्टिसाइड ला रहे हैं, और हमने यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, वो मैं आगे बताऊंगा, जो किसानों की जमीन को इतना उपजाऊ बना देगा कि उनको केमिकल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या आप लोग इस कार्य में हमारा साथ दोगे?
और दोगे तो बिल्कुल मैं चाहूंगा थम्स अप देके बताओ कि यस हम सबके साथ हैं और हम आपका साथ देंगे, क्योंकि पता तब चलता है जब आपका योगदान होगा ना, तभी होगा। यस, इतने थम्स अप, वेरी गुड। मित्रों, ये करना जरूरी है हमारे लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए जरूरी है। दूध में जहर, हवा में जहर, पानी में जहर, खाने में जहर, कैसे जिएंगे हम? हमको करना होगा और करके दिखाना होगा। हम ये कर रहे हैं। मित्रों, हमने एक यूनिक प्रोडक्ट सेम बायोकोल पैलेट और ब्रिकेट मशीन से बनाया है। वो एक ग्रीन हवन पैलेट और ब्रिकेट। हवन के लिए आमतौर पे आम के, पीपल के, नीम के लकड़ों का उपयोग होता है, क्योंकि वो जलाना होता है और हवन सामग्री और घी की आहुति दी जाती है। हमने पहली बार 3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, आई थिंक 30 तारीख को अक्षय तृतीया का दिन था। उस दिन हमने विश्व में पहली बार ग्रीन हवन पैलेट और ब्रिकेट का निर्माण किया। और ये हमारे बायोकोल पैलेट और ब्रिकेट मशीन से किया, जिसमें गोपूर, हवन सामग्री, गौमूत्र, बायोमास और गाय के गोबर, इसके मिश्रण से किया। और ये प्रोडक्ट का आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। ये प्रोडक्शन हुआ था, उसी दिन का वीडियो है। ये मिक्सचर है पूरा, जिसके अंदर हमने हवन सामग्री मिलाई है। इसके अंदर यस सर। मिलाया है, इसके अंदर लकड़ी का स्वाद, अलग अलग लकड़ी को हमने बनाया है। और इसके अलावा गाय का गोबर मिलाया है। ये एक अनोखा प्रयोग था, ये ना किसी ने सोचा था, आज तक ना किया था, सोचा ही नहीं था। पहली बार हमने ये सोचा और इसका ट्रायल लिया। हो रहा जय। जब वो गर्व होता है कहते हैं कि हमारा प्रयोग हर हर महादेव। ये वीडियो देख के मन खुशी से भर जाता है। यस सर। विश्व में पहली बार बायोकोल ब्रिकेट मशीन से हवन के ब्रिकेट बन रहे हैं, क्या बात है। जिसके अंदर हवन सामग्री, आम के लकड़ी का बुरादा, साथ ही कपूर, गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर और कुछ बायोमास, उसके मिलन से ये बनाया गया है। और ये अपने आप में पहली बार ये प्रयोग हो रहा है। आज तक ना किसी ने इस तरह से सोचा, ना आज तक किसी ने इस तरह से किया। अब यहाँ से फीडिंग हुआ है, हमारे राकेश जी है, टाइगर सर है, हमारे खौरे साहब हैं, अभिषेक जी है, सारी टीम हमारी यहाँ पे है और सब लोग मिलकर अभी इसमें फीडिंग कर रहे हैं। यहाँ से अभी ये इनपुट हो रहा है, अभी वहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है वो हमको देखना है। तो बस करते एक नई शुरुआत SSK भारत स्टार्टअप के साथ। नहीं, SSK भारत के शुद्ध हवन ब्रिकेट के साथ। क्या बात है। यस, तो अभी चलते हैं वहाँ पे, वो देखते हैं क्या शुरू हो रहा है। हालांकि पहले का माल निकलेगा, फिर ये निकलेगा। आइए सब लोग। वीडियो बनाना मुझे अपने वीडियो में बहुत बढ़िया वीडियो बनाना तो बहुत सारे हमारे भाई क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे बहुत चिंतित था। हालांकि इससे मैं कम सीखूँ तो इसके बात को ज़्यादा नहीं। अरे आ जाइए, मशीनें चल रही है, कहाँ चले गए? तो ये प्रोडक्ट अरे इधर प्रोडक्ट रखा हुआ है, रखा है ना, वो दूसरे खाली करके ले लो। अतुल जी लिया। हाँ चालू है। ये है विश्व का पहला हवन ब्रिकेट, इसकी खुशबू, हाँ देखिए, हम भी देखें। देखिए इसकी खुशबू देखिए। कपूर और औषधि, कपूर और जड़ी बूटियों का ये पूरा संगम है। ये ब्रिकेट, हवन ब्रिकेट आने वाले समय में इतिहास बनाने वाला है। ये है SSK भारत की एक नई पहल, वाराणसी के पहले SSK भारत ये एक अनोखा उत्पाद, जिसकी कल्पना हमने की, हमारी टीम ने की। बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसके बाद में हमने एक यूनिक प्रोडक्ट और बनाया। ये बहुत बड़ा खतरे वाला काम था, मगर इसमें हमारे जो इंजीनियर थे उन्होंने हमको बहुत गाइड किया
और प्राकृतिक बायोकोल ब्रिकेट एंड प्राकृतिक बायोकोल पैरेट। बायोचार यानी जिसके अंदर कार्बन और बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। जिप्सम जिसके अंदर कैल्शियम और सल्फर और बाकी न्यूट्रिशन होते हैं। उसके साथ साथ गोबर, इसके मिश्रण से हमने ये पहली बार सेम बायोकोल पैलेट ब्रिकेट मशीन से बनाया। और ये भी आप देख सकते हो मिलाया जा रहा है। ये फर्टिलाइजर ब्रिकेट और पैलेट का अभी तैयारी चल रहा है। ये एक अगेन चमत्कारी प्रोडक्ट, अगेन विश्व में पहली बार बायोकोल ब्रिकेट मशीन से फर्टिलाइजर ब्रिकेट, बायोकोल पैलेट मशीन से फर्टिलाइजर पैलेट। अभी ये है गाय का गोबर, तो गाय मतलब मिक्स गोबर है, ये सिर्फ गाय का नहीं है। और गोबर में हम कार्बन यानी बायोचार और उसके साथ साथ जिप्सम इसका मिक्सिंग करेंगे। और ये तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन रेशियो में मिक्सिंग करके फिर इससे बायो फर्टिलाइजर ब्रिकेट और बायो फर्टिलाइजर पैलेट, ये 100% नेचुरल है। इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर सल्फर है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन, गाय के गोबर के गुण हैं और ड्राई। तो ये अपने आप में मिरेकलस चमत्कारिक प्रोडक्ट होने जा रहा है भारत की भूमि को सुधारने के लिए, इसकी गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए और विदाउट केमिकल। ये अपने आप में एक इतिहास होगा। हालांकि अभी इसकी परीक्षा कुछ 1-1.5 घंटे बाद हम बता पाएंगे, फाइनल स्टेज पे अभी चल रहा है। तो बट हमें विश्वास है कि ये हो जाएगा और ये सक्सेसफुल होगा। तो अभी थोड़ी देर में आप दिखा पाओगे लोगों को ये वीडियो कैसे बनता है। इस मशीन में से ये निकालना ये बहुत बड़ा रिस्की काम था, भी टेंस थे, मगर कृषि बाबा आप सबके आशीर्वाद ऊपर वाले की मेहरबानी था, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और हमने उनका बहुत अच्छे से बाहर निकाला। अगर हो जल्दी दिख चारकोल यानी बायोचार और चारकोल, इसमें कार्बन और बाकी न्यूट्रिशन होते हैं। जिप्सम जिसमें कैल्शियम और सल्फर और बाकी न्यूट्रिशन होते हैं। और गोबर इसके मिश्रण से बने हुए बायो फर्टिलाइजर या नेचुरल फर्टिलाइजर पैलेट, ये विश्व के पहले बने हैं। गर्म है ये देखिए। तो ये फिर से एक नया प्रयोग, नई खोज तो मित्रों मिलाया जा रहा है। ये जो वसुंधरा फर्टिलाइजर पैलेट एंड वसुंधरा फर्टिलाइजर ब्रिकेट, ये जमीन में पेड़ों के पास आप पाउडर फॉर्म में डाल सकते हो। बड़े पेड़ों के बाद में जो ब्रिकेट है वो खोल के रख सकते हो। छोटे पौधों पे पैलेट डाल सकते हो। कार्बन कम से कम 100 साल तक धरती को कार्बन प्रदान करेगा। बायोचार जो जिप्सम है वो धरती में बहुत सारे पोषण तत्व देगा। गोबर, और आपकी धरती धीरे धीरे करके इतनी खिल उठेगी ना कि वो सचमुच खुशी के मारे हमको खुशी से आशीर्वाद देते हुए माँ धरती माँ हमको बहुत सारा आशीर्वाद देगी। मुझे किसी की बात याद आ रही है। एक जन ने मुझे कहा था कि अगर धरती को बोलने की क्षमता होती तो वो कहती कि मेरे बच्चों तुमने मेरे क्या हाल करके रखा है, मुझे जहर दे रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। ये कहती धरती माता। इस धरती माता का कर्ज चुकाना है और इसको फिर से 100% नेचुरल पे ले जाना है, और इसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है मित्रों। इसके बाद हमारे अपने सोप की रेंज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। हल्दी चंदन और नीम एलोवेरा तुलसी, इसके साथ साथ ब्लूबेरी, हमारा अपना फर्टिलाइजर, वाटर फिल्टर, बायोस्टोव, हमारी अपनी अगरबत्ती। ये मेरे मित्र है रियाज सैयद जी, जो गडकरी जी के साथ जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति है। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सेवा करते हैं लोगों की। इन्होंने जब ये अगरबत्ती हमने लॉन्च की ना, तो ये दूसरे ही दिन गडकरी जी को जाके इन्होंने भेंट की थी। और ये हमने एक महिलाओं के स्टार्टअप से हमने रॉ मटेरियल इसका लिया है। अब हमारे इस तरह के बॉक्स में अगरबत्तियां रेडी होके आ गई है और अभी ये मार्केट में अवेलेबल कर रहे हैं। इस तरह से हमारी 6 ब्रांड आ चुकी है। आने वाले समय में हम इसको बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, हमारा अपना कैटल फीड पाउडर, हर्बल कैटल फीड पाउडर, वाराणसी में जिन्होंने इसको वापरा वो इसके चमत्कार को मान गए। सुबह शाम 25-25 ग्राम, पहले 7 दिन, और बाद में 15-15 ग्राम। सर, दूध 1 लीटर से 3 लीटर बढ़ा है। किसी का फैट बढ़ा है, किसी का SNF बढ़ा है, और इसके रिजल्ट चमत्कार है। बट ये भारत के प्राचीन आयुर्वेद विज्ञान का देन है। ये कार्तिक रावल का देन नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे साधु संत, इसके अलावा जो वेदों के जानकार है, जो आयुर्वेद के जानकार है, ऐसे लोगों ने मुझे इसका ज्ञान दिया। मेरा खुद का अपना 20-25 साल का स्टडी, ये सब मिला के यूनिक कैटल फीड पाउडर बना है, और ये तो पूरी मार्केट को अभी हिला के रखने वाला है। ये भी हमारा रेडी हो चुका है।
स्पिरुलिना पाउडर, इसके बारे में मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ये एकदम न्यूट्रिशन है। मोरिंगा पाउडर, दोनों हमने लॉन्च किया है, स्पिरुलिना मोरिंगा। और ये पहला जो प्रोजेक्ट है इस तरह का, ये प्रोजेक्ट 15 करोड़ का है और 100% ऑपरेशनल ये जुलाई एंड तक में हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का टर्नओवर 50 करोड़ से स्टार्ट होगा और प्रॉफिट 10 करोड़ से स्टार्ट होगा, जो आगे आगे बढ़ते जाएगा। और ऐसी हर एक कंपनी की हम आईपीओ भी लाने वाले हैं। अब मित्रों, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ आपके तहसील में जुड़ के हमारे साथ एक कंपनी बना के, वहां पे आप चाहे तो फैक्ट्री का बिजनेस कर सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट स्टार्टअप कर सकते हैं। आप चाहो तो प्रोडक्ट स्टार्टअप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्टअप की अगर हम बात करें मित्रों, तो हमने 35 पे रोक दिया था, हमको 51 करने थे, 35 पे रोक दिया था। कुछ लोगों के अपने पर्सनल कारणों से वो लोग बैकआउट हुए, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी खुली है और कुछ लोगों के लिए ही अब ये जगह है। तो ये कुछ ही प्रोजेक्ट हम बुक करने वाले, ये कंटिन्यूटी में नहीं करने वाले हैं अभी। हमको कमिटेड लोग चाहिए, परीक्षा से वो आने वाले चाहिए, बट अभी इनिशियल स्टेज में क्योंकि कुछ बैकआउट हुए हैं तो उतना ही जगह हम भरने वाले हैं। इसमें इंटरप्रेनर का टोटल इन्वेस्टमेंट है 15 लाख रुपया, जो बुकिंग के समय में देंगे। बुकिंग के पेमेंट आने के बाद में कंपनी बनाई जाएगी एक स्टार्टअप की, जिसमें उन्हीं के 2 डायरेक्टर होंगे। उसके बाद में वो कंपनी बनने के बाद में एसएस के भारत उनको जो 15 लाख एसएस के भारत को दिए है, उसमें से 5 लाख रिटर्न करेंगे, जो उस कंपनी को एज अ डायरेक्टर लोन वो देंगे। 3 लाख का प्रोडक्ट लेंगे, 2 लाख से शॉपिंग कम ऑफिस चालू करेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में एसएस के भारत उसमें 80% स्टेक ले लेंगे और 10 लाख रुपए जो उन्होंने और दिए थे हमको, मतलब 15 दिए थे ना, तो 5 हमने वापस दिए, 10 है, वो 5-5 लाख के 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। अगेन वो पैसे वो स्टार्टअप कंपनी को दिए जाएंगे एज अ डायरेक्टर लोन, और वो 10 लाख रुपए एसएस के भारत को आएंगे एज अ कंसल्टिंग चार्ज फॉर फैक्ट्री सेटअप। और ये 15 लाख का निवेश होगा। अब जब बिजनेस चालू होगा तो कैसे होगा, वो पहले अपने एसएससी एसएससी डेवलप करेंगे एज पर एसएस के भारत टर्म्स कंडीशन। जैसे ही उसमें प्रॉफिट शुरू होगा, पहले 50,000 तक का प्रॉफिट हर महीने का एंटरप्रेनर को जाएगा। उसके ऊपर का प्रॉफिट उनका लोन रिटर्न जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 4-6 मंथ, क्योंकि जब प्रोडक्ट की रेंज आ जाएगी तब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 4-6 महीने में उनका 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वापिस अगर हो गया तो उनका इन्वेस्टमेंट बिकम्स जीरो। उनकी मेहनत का जो फल है वो आजीवन उनको मिलते रहेगा। और उसके बाद में 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट उनको एज अ डायरेक्टर रिन्यूमरेशन जाएगा और उसके बाद में एज पर शेयरिंग रेशियो जाएगा। एसएस के भारत आगे जाके उस कंपनी का 10 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल करेगी। उसके लिए जो खर्चा है वो एसएस के भारत अरेंज करेंगी, और उसमें फैक्ट्री लगाने के लिए, बाकी के कामों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो एसएस के भारत अपनी 80% स्टेक से जनरेट करेगी। उसके अलावा जो फॉर्मेलिटी प्रोसीजर रिक्वायर है वो करके हम 4 से 6 साल में इस कंपनी का एसएमई आईपीओ भी लाएंगे एज पर द रूल्स रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट स्टार्टअप है, प्रोजेक्ट स्टार्टअप है, मगर इसमें ज्यादा लोगों के पास लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। और वन टाइम का 15 लाख रुपए का पेमेंट जो कर सकते हैं उन्हीं के लिए है। पहले हमने इंस्टॉलमेंट में दिया, बट हमने देखा कि लोग किसी न किसी कारण अटक जाते हैं और फिर चीजें स्मूथली नहीं होती। अब हमको ये काम नहीं करना है, तो जो 15 लाख रुपया एक साथ पहले हमको एज ए डिपॉजिट दे सकता है वही ये काम कर सकता है, और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। मगर औरों के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वो है हमारा प्रोडक्ट स्टार्टअप। प्रोडक्ट स्टार्टअप में एसएस के भारत आपसे एक भी रुपया एज अ कंसल्टिंग फी नहीं लेता। एंटरप्रेनर का 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लस कंपनी फॉर्मेशन चार्जेस अप्रोक्सीमेट 21,000 प्लस जीएसटी होता है, बट कोई कोई स्टेट में ज्यादा होगा तो वो एप्लीकेबल होगा, कहीं ज्यादा डायरेक्टर हो गए तो वो भी एप्लीकेबल होगा। एंटरप्रेनर कंपनी बन जाएगी, कंपनी करने के बाद 2 डायरेक्टर के साथ वो अपनी कंपनी को 5 लाख लोन देंगे, जिसमें से 3 लाख का प्रोडक्ट लिया जाएगा, 2 लाख शॉपिंग कम ऑफिस होगा। प्रॉफिट में से 50,000 रुपया उनको मिलेगा, उसके ऊपर का पैसा उनका लोन रिटर्न होगा, और उसके बाद 1 लाख रुपया तक उनको मिलेगा। आगे का रोड मैप सेम है। हम कोशिश करेंगे कि इस कंपनी को भी हम फैक्ट्री लगाए, इस कंपनी का भी हम आईपीओ लाए, मगर ये इंटायर निर्भर करता है उस तहसील में जो हमारे एंटरप्रेनर टीम है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनका कमिटमेंट क्या है, वो देख के ही हम ये करेंगे। प्रोजेक्ट स्टार्टअप में हम कमिटेड है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे। प्रोडक्ट स्टार्टअप में डिपेंड अपॉन टर्म्स कंडीशन, जो भी वहां की परिस्थिति होगी वो हिसाब से लगाएंगे, मगर हमारी कोशिश रहेगी वहां भी हम फैक्ट्रियां लगाए जो वहां के लिए वायबल हो। जरूरी नहीं कि हर जगह पे एक ही तरह की फैक्ट्री लगे, जहां पे जो वायबल होगी वो लगेगी। और एक मॉडल है मित्रों हमारे पास एसएस के भारत की इक्विटी। अगर आपके पास 5 लाख भी खुद के नहीं है तो आप, या तो जिनके पास खुद के हैं वो हमारी एसएस के भारत की 25 लाख की इक्विटी ले सकते हैं। जिनके पास नहीं है
वो इक्विटी दूसरों को प्रमोट कर सकते हैं। और ऐसे जो लोग प्रमोट करेंगे, ऐसे लोगों को जो बेनिफिट मिलना है वो तो मिलेगा, बट ऐसी तहसील में भी हम स्टार्टअप कंपनी बनाएंगे। इसका टाइमलाइन रहेगा 6 से 12 महीने का। और ये जो 25 लाख की इक्विटी बेचेंगे, उन कंपनियों में एसएस के भारत 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा, उनकी कंपनी बना के देगा, उसमें 80% स्टेक लेगा, और वहां पे पूरा का पूरा बिजनेस डेवलप होगा। अगेन उसमें से 1 लाख रुपया पर मंथ तक उनका प्रॉफिट उनको ही मिलेगा। उसके बाद जो आगा वो डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, एसएस के भारत उसमें से कुछ लेगा। इस तरह से और एक अपॉर्चुनिटी हमने दी है। मतलब अभी कोई ये नहीं कह सकता कि यार हम ये नहीं कर सकते। जिसके इधर जान है ना, जिसके इधर बिजनेस है, जो बिजनेस समझता है, बिजनेस में काम करने की जो जुनून रखता है ना, वो व्यक्ति के लिए अगर खुद के पास पैसे नहीं है तो उसको भी हमने अपॉर्चुनिटी दे दी है मित्रों। अब क्या चाहिए बताओ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्टअप और ये है हमारा प्रोडक्ट स्टार्टअप। मगर आप अगर इससे भी आगे मतलब ये ना करना चाहो, तभी भी हमारे पास आपके लिए और एक अपॉर्चुनिटी है। वो है अवर ओन सेलिंग नेटवर्क, एसएस के भारत, एसएससी सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर इन विलेजेस, हाइपर या होम सेल सेंटर इन सिटी एरिया। ये हमारी फ्रेंचाइजी ऑलरेडी इस तरह से खुली है और हम घरों से फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर अपने आजू बाजू के 100 घर को कस्टमर बना ले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, मसाला, फर्टिलाइजर, कैटल फीड, ये अगर 3,000 का भी एवरेज बेचे ना, तो 3 लाख का महीने का सेल होता है। और एवरेज 15% प्रॉफिट पकड़ू तो कम से कम 40-50 हजार रुपये अपने घर से कमा सकते हैं मित्रों। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लेके आए हैं विदाउट रिस्क। ना आपको लाखों रुपया निवेश करना है, ना कोई फ्रेंचाइजी फी भरनी है, ना कोई डिपॉजिट देनी है, माल लेना है, माल बेचना है, पैसे कमाना है, सिंपल। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? अब लोगों को ये समझ में आने लगा है, जैसे प्रोडक्ट आने लगे और लोग बड़ी तेजी से अब जुड़ने लगे। इसके लिए ये हमारा अपना ओन नेटवर्क है सेलिंग। इट्स लाइक अ मिनी पतंजलि, मगर पतंजलि से भी अलग मॉडल है हमारा, और हमारा घर घर का मॉडल है, हर घर का मॉडल है। तो आप ये लेना चाहते हो तो आपको 25,000 का प्रोडक्ट लेना है। 3 महीने में आपका 50,000 का एवरेज सेल होना चाहिए, मगर पहले 6 महीने कोई कंडीशन नहीं है। आपको एक ज्वाइनिंग किट दिया जाएगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी, सेल्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, प्रोडक्ट के लिए। ऑफलाइन ट्रेनिंग जहां पॉसिबल होगी वो दी जाएगी। और ये पूरा नेटवर्क हम डेवलप कर रहे हैं। आप लोगों के पास एक छोटे से अमाउंट में अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे फ्रेंचाइजी आपके गांव की लेके, एक गांव में एक को दे दिया, बात खत्म। वहां पे दूसरे का नंबर नहीं लग सकता। शहरों में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि शहरों में लाखों का पॉपुलेशन है, मगर गांवों में ऐसा नहीं। तो ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मित्रों आपके लिए आई है, और ये भी आप ले सकते हो। उसके अलावा हमारे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बिकम को ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के को ओनर कौन होते हैं पता है? कंपनी के शेयर होल्डर। एसएस के भारत 1 रुपए फेस वैल्यू की 15 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी है। 1 करोड़ 7 लाख पेड अप कैपिटल है। अगर ये किसी को देखना है तो गूगल पे जाके ना सर्च करे, आरओसी की वेबसाइट पे जाके देखे, आपको मिल जाएगा। और इसके शेयर, प्रमोटर कोटा शेयर, 1 रुपीज फेस वैल्यू के 30 रुपए के भाव से 500 शेयर का लॉट, 15,000 का एक लॉट होता है, कोई 10 लॉट लेता है, कोई 100 लॉट लेता है, जिसको जैसा लेना है वैसा लेता है। शेयर्स आपके डीमेट में ही आते हैं, और इसके साथ साथ हम एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट देते हैं, बायबैक डॉक्यूमेंट, कि आपको 3 साल बाद वापिस, 4 साल बाद वापिस देना है तो हम 30 का 60 रुपए से ले लेंगे। ये आपकी सेफ्टी के लिए हम दे रहे हैं। बट तब तक में आपको पता चल जाएगा कि शेयर क्या होने वाला है। तो 2030 में हम इसका आईपीओ लाएंगे, स्काई इज द लिमिट। मगर एक वीडियो देखते हैं कि शेयर में एप्रिसिएशन कैसे होता है मित्र। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार सर मेरे दादाजी ने 1990 में एमआरएफ शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं एमआरएफ। ऑलराइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की, जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में। वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई ने रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से एमआरएफ चल रहा है करीब 64-65 हजार के बीच में। उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट। 130 करोड़ रुपया
20,000 शेयर, शायद 10 रुपए के रहे होंगे, 2-3 लाख रुपए के 1990 में। सोचो 130 करोड़ रुपए। आपको पता है विप्रो, विप्रो कंपनी आप सब जानते होंगे मित्रों। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी सर ने जब कंपनी शुरू की तो अमरनेर जिले के धुले जिले के अमरनेर तहसील के अपने गांव में 100 रुपए का एक ऐसे 10,000 रुपए के 100 शेयर दिए थे। वो शेयर का आज का वैल्यूएशन क्या है पता है? क्या कल्पना लगा सकते हो? उसका डिविडेंड, बोनस से स्प्लिट, ये सब पकड़ के 750 करोड़ का वैल्यूएशन है। यही अदानी में हुआ, यही रिलायंस में हुआ। गुरु पिक्चर आपने देखी होगी। पिक्चर में एक सीन है जब गुरु में मतलब अभिषेक बच्चन को, जो कि धीरूभाई अंबानी का किरदार अदा कर रहे थे, उनको कोर्ट में ले जाया जाता है तो बाहर हजारों लोग जमा होते हैं और एक व्यक्ति कहता है मैंने मेरी 3 बेटी की शादी रिलायंस के शेयर से की। ये होता है शेयर। शेयर के जैसा एप्रिसिएशन ना जमीन में, ना सोने में, ना चांदी में, ना हीरे में, ना मोती में, ना माणिक में, और ना ही किसी क्रिप्टो में। ये ध्यान रखिए। शेयर मतलब शेयर, इससे बड़ा कोई शेयर नहीं। ठीक है। तो ये शेयर्स आमतौर पे कॉमन लोगों को नहीं मिलते कंपनी के, क्योंकि वो कंपनी के प्रमोटर्स को नहीं जानते। मगर हमारे जानने पहचानने वाले लोग, हमारे एसोसिएट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एसएस के भारत के शेयर में निवेश करे और आने वाले समय में इसका जबरदस्त एप्रिसिएशन पाए। अगर आपने नहीं किया है तो कर लो, और आप जिसको करवाना चाहो उनको भी करवा दो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मित्रों आपके लिए आई है, तो इसको मिस मत कीजिए। और 2030 में हम जब आईपीओ लाएंगे तब 10 से 100 गुना ईश्वर ने चाहा होगा उतना इसका एप्रिसिएशन होगा। क्योंकि अभी एक कंपनी आई थी, मैंने देखा 1 रुपया फेस वैल्यू का शेयर 325 रुपए के भाव से आ रहा है, और वो कंपनी तो एनर्जी में छोटा सा काम कर रही थी। तो आप सोचो एसएस के भारत का बिजनेस मॉडल कितना बड़ा है। एसएस के भारत मेन कंपनी, उसके नीचे 50 फैक्ट्री और 500 स्टार्टअप जो प्रोडक्ट में करेंगे, 50 फैक्ट्री स्टार्टअप होंगे। इतना बड़ा टर्नओवर होगा तो एसएस के भारत में स्काई इज द लिमिट। ये गलती मत करना इस बार, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो लेके रहना। छोटा सा इन्वेस्टमेंट। एक मोबाइल कितने का आता है मित्रों? आज के जमाने में एक मोबाइल 15,000 से लेके 1.5 लाख का आता है। एक घर में कितने मोबाइल होते हैं? जितने मेंबर है उतने नहीं, नहीं, किसी के पास तो 2-2, 3-3 होते हैं ना। 2-4 मोबाइल पुराने हमारे घर में ऐसे भंगार में पड़े होते हैं। 2 साल बाद मोबाइल की क्या वैल्यू आती है? जीरो। जीरो आती है ना। तो यहाँ पे आप सोचो, आप इस शेयर के पैसे से जो कुछ जीवन में पा चाहते हो पा सकते हो, कुछ समय में, कुछ सालों में। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है मित्रों, इसको जरूर लीजिए। अब हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। उसके लिए क्या चाहिए? एजुकेशन, मनी और प्रॉपर्टी। उसके लिए क्या करता है कोई व्यक्ति? प्रोफेशनल काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है। मगर क्या सारे लोगों के सपने पूरे होते हैं? स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लीडर्स, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए लोग, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग, ये लोग टारगेट के स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। ये लोग चाहते हुए भी अपनी जिंदगी सुकून से नहीं जी सकते, बहुत बड़े प्रेशर में जीते। अब तो बिजनेसमैन भी प्रेशर में जी रहा है, प्रोफेशनल भी प्रेशर में जी रहा है। ऐसे हर लोगों के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हम लाए विद जीरो इन्वेस्टमेंट, बिकम। और ये 100% कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी है, नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। ये है ज्वाइन अस एज एसएस के भारत इंडिपेंडेंट बिजनेस एग्जीक्यूटिव, IBE। अगर आप हमारे शेयर प्रमोट करते हो, इक्विटी प्रमोट करते हो, इन्वेस्टर को लाते हो, तो उससे जुड़ा हुआ बेनिफिट्स, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन हमने बनाया है। और ये पैसे हम पूरे के पूरे फैक्ट्रीज में यूटिलाइज करते हैं। अगर आप हमारे लिए एसएससी, एचएससी टाई अप करते हो, शेयर्स में वन टाइम बेनिफिट है, इक्विटी में वन टाइम बेनिफिट है, बट एसएससी, एचएससी में लाइफ टाइम बेनिफिट है। जिंदगी भर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये 100 अगर आपने कर लिया ना मित्रों, तो आप हो सकता है 1 लाख से 10 लाख रुपया महीना कुछ भी ना करके, कुछ भी ना बेच के कमाओ। सिर्फ आपको फोन पे लगे रहना है, मोटिवेट करना है, कभी कभी फील्ड पे जाके मीटिंग करनी है, उनके साथ जुड़े रहना है। ये अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए ले आए हैं। अगर आप स्टार्टअप करते हो तो स्टार्टअप में भी हमने यही लाइफ टाइम इनकम का प्रोग्राम दिया है। ये आप जानना समझना चाहो ना मित्रों, तो आप जिन्होंने इस वेबिनार में आपको इनवाइट किया है उनको बोलो कि भाई ये क्या है मुझे बताओ। और इसमें कहीं भी कोई भी मिस कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी बड़ी बातें नहीं है, कोई भी अनइथिकल काम नहीं है। 100% लीगल, और जो हम दे सकते हैं सब्जेक्ट टू सेल, सब्जेक्ट टू प्रॉफिट, वही हमने दिया है। तो इसमें कहीं भी ये भी नहीं है कि हमने इतना कहा है तो हम नहीं दे पाएंगे। और इसमें आप लाखों करोड़ रुपए भी कमा सकते हो, घर, गाड़ी, बंगला भी कमा सकते हो। तो ये पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेके आए हैं मित्रों। इसके अलावा हम, क्योंकि आपने देखा होगा कि उपाध्याय सर ट्रेड कमिश्नर है, ये है ईरान के एम्बेसडर, सॉरी, ये ईरान के कमर्शियल एटेंड डॉक्टर हुसैन बामरी सर। ईरान अपनी जरूरत का 65% कैटल फीड भारत से लेता है। सर को हम ऑफर करने वाले, वो वहां पे लेने को तैयार है। मगर इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है, पहले इसको तो कैटर करे। ITO प्रेसिडेंट, पोलैंड का डेलीगेशन, अफ्रीकन कंट्री का डेलीगेशन,
ये तो चलते ही रहता है मित्रों। तो आप सोचो कि आप कितने स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के आपको मौका मिला है। जो जुड़े हैं ना वो तो सचमुच में लकी है, उनको अब एक्टिवली शुरू हो जाना चाहिए। हमने आज ही मेल भेजा है लोगों को, हमारे जो स्टार्टअप जिनकी कंपनियां फॉर्म हो गई है, अब हम उनकी शॉपिंग खोलेंगे, हम वहां पे प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे, और वो पूरा एस्टेब्लिश होने पे हम उसको फैक्ट्री की तरफ लेके जाएंगे। ये शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है मित्रों, आज हमने मेल भेज दी है। मई, जून, जुलाई और अगस्त में हमारी 15 से 20 तहसीलों में ऐसी फ्रेंचाइजी खुल जाएगी। इसी महीने में हमारा एक्सपेक्टेशन है वलसाड़ का हमारा पहला स्टार्टअप का फ्रेंचाइजी शॉपिंग खुल जाएगा। मित्रों, स्काई इज द लिमिट। और जो लोग नहीं कर पा रहे उनको हम अभी रिलीव कर रहे हैं सम्मान के साथ, और नए लोगों को एंट्री दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आई है मित्रों, ये हमारा यूपी गवर्नमेंट का एमओयू है। मित्रों, आज अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, अगर अपने खुद के भविष्य को अपने परिवार के भविष्य के साथ बेहतर करना है, अगर हमारे ग्रामीण भारत का विकास करना है, ग्रामीण भारत में रोजगार देना है, किसानों का भला करना है, युवाओं का भला करना है, एक ऐसे बिजनेस मॉडल पे काम करना है जो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, तो वो है एसएस के भारत स्टार्टअप रिवोल्यूशन। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, आज के समय में ना कुछ है। तो आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं मित्रों, फिर से मिलके भारत को 30% वर्ल्ड जीडीपी पे ले जाते हैं, फिर से मिलके भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। और इसके लिए चाहिए एक स्केल, वो स्केल है एसएस के भारत स्टार्टअप। रतन टाटा जी कहते हैं हम सबके आदर से, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। अगर आपको तेजी से चलना है ना तो अकेले चलो, मगर आपको लंबा चलना है तो साथ में चलो। तो हम रतन टाटा जी का ही बात को फॉलो कर रहे हैं, हमें लंबा चलना है, और इसलिए हम आप सब लोगों का साथ और सहकार चाहते हैं मित्रों, आप सबके साथ काम करना चाहते हैं, और फिर से हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आओ हम सब मिलकर अपने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाए, एक नई शुरुआत एसएस के भारत स्टार्टअप के साथ। मित्रों, कहीं ना कहीं हम आज विदेशी कंपनियों के हाथ के गुलाम बन चुके हैं। मैं इनके विरोध में नहीं हूं, उनको बिजनेस करना आता है इसलिए वो कर रहे हैं। क्या हमें नहीं आता? साबुन कौन बनाता है मित्रों? पियर साबुन, हिंदुस्तान लीवर। डव साबुन, हिंदुस्तान लीवर। लक्स साबुन, हिंदुस्तान लीवर। अरे भाई, साबुन बनाने में कोई रॉकेट साइंस है क्या? हम नहीं कर सकते? कर सकते और करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं एक नई शुरुआत एसएस के भारत स्टार्टअप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलके करते, दिल से करते, करके दिखाते। लेट्स डू इट। विश यू ऑल गुड लक, विश यू ऑल ग्रैंड एंड सक्सेस, एंड वेलकम टू एसएस के भारत फैमिली, एसएस के भारत परिवार में आपका, आप सबका हार्दिक स्वागत है। चाहे आप काम से जुड़े, चाहे आप धन से जुड़े, इन्वेस्टमेंट से जुड़े, चाहे आप हमको आशीर्वाद दे, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु सर्वदा। थैंक यू।